Welcome to Aspire Science Academy Yavatmal, the largest educational platform of Yavatmal. We are providing NEET, JEE, MHTCP, NDA, ISER, repeater courses. I, Dr. Snehal Nilesh Kuke, Director of Aspire Science Academy. Today, we are going to discuss NEET 2024 full paper. So, get ready guys for the paper discussion of NEET 2024. Good morning friends, this is Dr. Palak Nathwani from Aspire Science Academy and today we will be discussing NEET 2024 paper Zoology section. So this goes for our first question. Which of the following is not a steroid hormone? Steroid hormones वो सारे होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं. So going for the first question, cortisol. Cortisol is derived from cholesterol. Yes, this goes for testosterone. 100% goes for cholesterol and progesterone also is derived from cholesterol. So last option we are having glucagon. Glucagon is the hormone which is derived from a peptide. This is a protein hormone. So our answer for the question number 151 goes for glucagon. Answer is 4th. Moving ahead. Given below are the two statements. Statement number 1, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. Statement 2, the hymen is shown during the first coitus only. Going for the statement 1, once again, the presence or absence of hymen. What do you mean by hymen? Hymen is the opening behind the cervix. Is it reliable indicator for virginity? No, it is not at all a reliable indicator for virginity because most of the time we can break the virginity when the girl is a sports player. So we cannot answer for the statement 1. So this is absolutely a correct answer that yes, hymen का presence या absence रहने से हम किसी लड़की का virginity नहीं बता सकते. Statement 2, hymen is shown during the first coitus only. No, this is absolutely wrong. Hymen is not shown during the first coitus. There are multiple reasons of breakage of hymen. Like once again I will repeat कि जो वो लड़की अगर sports player होगी, अगर लड़की कोई cycling वाली होगी, तो this is not necessary कि first coitus में ही उसका hymen breakdown होगा. So we will go for statement 1 is correct and the statement 2 is false. So option number 3 is the answer. Okay. Then once again moving ahead. 153. Which of the following statement is incorrect? This is something about the bioreactors from the chapter biotechnology. A bioreactor provides optimal growth condition for achieving the desired products. First of all, what do you mean by bioreactors? Bioreactors are those apparatus or instrument constructed for the large scale of obtaining of some bacteria or for some host. So going ahead, bioreactors provides optimal growth condition. Yes, 100% they provide optimal growth condition. This is correct answer. What we are looking for is incorrect. So this is something correct. Most commonly used bioindicators are Stirling type. This is also correct. Another one is bioreactors are used to produce small scale bacteria. This is absolutely wrong. As I said in the beginning, bioreactors are used into production of bacterial cultures in large scale. So this is something incorrect. Going for option number 4, bioreactors have Agita system and have oxygen delivery system 100%. So our answer goes for 3rd. This statement is incorrect. Next question. Given below are the two statements. One is labeled as assertion, another one is labeled as reason. Assertion. FSH acts upon ovarian follicle in female and Leydig cells in male. This is something wrong which I can say assertion is wrong. FSH acts on the female ovarian follicles. This is correct, but on the Leydig cells in men, this is wrong because LH, luteinizing hormone, acts on Leydig cells in the male. So we can say assertion is false or wrong. Reason, growing ovarian follicles secretes estrogen. This is correct because जैसे follicles grow कर रहे हैं from primary to secondary, from tertiary and then to Graafian. This is the growth of follicles. They 100% release estrogen. While the interstitial cells secretes androgen. What do you mean by interstitial cells? Interstitial cells का ही मतलब होता है Leydig cells. Leydig cells are responsible for secretion of testosterone. What do you mean by testosterone? Testosterone is an androgen. So reason is correct. So we can say A is false, but R is true. Our option number 4 is correct for question number 154. Which on the following is the correct product of DNA-dependent RNA polymerase to the given template? If we will once again read the question is given DNA-dependent RNA polymerase. We are making over here RNA. So what we will require is DNA-dependent RNA polymerase. जब भी कभी अगर हमें RNA बनाना है तो हमें RNA polymerase लगेगा.
If this is the option, if we will make its coding, T goes for adenine. Adenine, when if we are making RNA, so adenine will go for uracil. Then once again it will go for G, U, A, C, C, G, U, 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 A, U, A, G, G, U, A, last option is G, and once again U. And if we are making 10 bit, this will be 5 dash and another one will be 3 dash. Now we have to find out where is this answer. 5 dash, A, U, G, U, A, C, C, G, triple U, A, U. So we can go for option number 1. So our correct option is answer number 1 for question number 154. Next, which of the following stages are the pathway for the conduction of action potential through the heart? So we know the diagram. For the concept clearance, I will make a diagram. If this is your heart, this goes for 2 atrium, this goes for 2 ventricle. Upper part is called as SA node, from where the impulse begins. From SA node, the impulse begins and then it goes to AV node. From AV node, there are bundle of leaves. We cannot see anything option like bundle of leaves, so we will consider AV bundle is written as bundle of leaves. So from SA node to AV node and then to AV bundle, and then from AV bundle we can go for right side and left side. Is there any bundle branches? Right bundle branch and left bundle branch. Then there is bundle branch and last option goes for Purkinje fibrous. So we consider SA. SA node is given for E. Our answer will obviously begin with E and E. Another one goes for AV node. AV node is C. E, C we can see here. E, C, A, D, B. So your answer goes for 1. Okay. Moving ahead. This is something related with cell cycle. Dikinesis. Dikinesis is something related with completion of terminalization of chiasmata. Panstein, your answer will go for, you can easily consider, if you can see A goes for 2, then your answer is in front of you. Once again, your Panstein is considered for the appearance of recombination nodules. Your zygote is considering for synaptic complex formation, and leptomeria is completion for, it goes for third one. Chromosome looks like thread, thin thread. Question number 159. 3 types of muscles are given as A, B and C. Identify the correct matching pair along with their location in the human body. So first go for A. ये सारी images आपके NCERT में बहुत ज़्यादा clear बने हुए हैं. A goes for अगर जो भी muscle cylindrical in shape रहता है तो इसका मतलब होता है कि they are skeletal muscles. Your skeletal muscles are always cylindrical in shape. Another one goes for spindle shape. इसका shape है spindle जैसा and they are uninucleated. So uninucleated रहने वाले जितने भी मसल्स हो जिनका शेप स्पिंडल जैसा मतलब आंखों के जैसा, आई शेप जैसा, then they are smooth muscles. Smooth muscles are always present into your stomach, into your alimentary canal. Going ahead with the third one, C. They are also again multinucleated and they are branched. ऐसे सिर्फ एक ही मसल है ह्यूमन बॉडी में जो कि ब्रांच है, they are called as cardiac muscles. So we have to go for the sequence: skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Option number 2 is the correct answer. Moving ahead, we have to match the following. List number 1, non-medicated IUDs. We know very well non-medicated IUDs belong to Lippes loop. Lippes loops are those plastic S-shaped structures. They are inserted into the female genital tract. So non-medicated goes for Lippes loop. Another one is copper releasing intrauterine device. Copper releasing intrauterine device goes for multi-load 375. Along with this, NCERT has also given us example of copper T and copper 7. Hormone releasing IUDs. There are only few forms of hormone releasing IUDs given into the NCERT which only releases progesterone, and its name is LNG20. It is releasing progesterone in the form of 20 mcg. Next, going for implant, we are having implant. It goes for progestogens. So we'll go for the answer non-medicated IUDs. A का आंसर है 3, A का आंसर एक हमें यहाँ दिख रहा है, एक हमें यहाँ दिख रहा है. Copper releasing IUDs 1, B का आंसर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है. Hormone releasing IUDs are LNG20. C का जवाब होना चाहिए 4, C का जवाब होना चाहिए 4. So our answer goes for 4th one. Correct answer है इसका 4th. Again, match the following list. Lipase is that enzyme which is responsible for breaking ester bonds. Ester bonds कहाँ पर होते
into the fatty acid. When we will break down triglycerides, triglycerides are broken down into glycerol and fatty acid. तो हमको इसको तोड़ने के लिए क्या लगता है, लाइपेज. तो योर फर्स्ट आंसर विल गो फॉर ए का आंसर होगा आपका 2. ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है. विल चेक अहेड. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज दैट एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन डीएनए. Nucleus will always break phosphodiester bond because there are 2 phosphodiester bond into the DNA. Going for protease, these are those enzymes which break down protein. So protease go for peptide bond and amylase goes for glycosidic bond. Amylase का मतलब होता है स्टार्च को ब्रेक करने वाला एंजाइम. So again moving ahead, हमारे पास में ये ऑलरेडी था, हमने चेक किया. amylase goes for glycosidic bond 100%. So answer of 161 goes for option number 3. Moving ahead, next question. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion A and another one is labeled as assertion reason R. Breastfeeding is during the initial period of infanthood is recommended by doctors for bringing healthy baby. बिल्कुल ये सही बात है. डॉक्टर्स यही बोलते हैं करके कि इनिशियली अपने जो भी न्यूबॉर्न है, इन्फेंट जो है, उनको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए. एक मां ने उसे अपना दूध पिलाना चाहिए. 100% सही बात है. दिस इज ट्रू. ऐसा ही होना चाहिए. रीजन इसका इन लोगों के हिसाब से ये है कि कोलेस्ट्रॉल कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न बेबी. कोलेस्ट्रॉल मतलब ये होता है फर्स्ट मिल्क. जो फर्स्ट मिल्क रहता है मम्मा का, उसके लिए टर्म यूज करते हैं कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. अब जैसे ये न्यूबॉर्न बेबी हमारे पास में आता है कि हम उससे सीधे सीधे एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, नहीं दे सकते. कोई सलाइन दे सकते हैं, नहीं दे सकते. बीसीजी के अलावा, पोलियो के अलावा कोई और वैक्सीन हम उसे नहीं दे सकते. सो हाउ टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड. वो अगर बच्चा आ रहा है तो हमें उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें उसे क्या देना चाहिए. वी गिव हिम फर्स्ट मिल्क. और क्या देते हैं हम लोग, मदर्स मिल्क. क्योंकि मदर्स मिल्क पे होती है एक एंटीबॉडी जिसका नाम है IgA. ये एंटीबॉडी विल प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शंस. सो आंसर इसका है ये. रीजन बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी सही बात है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. So both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So answer first. Moving ahead, next question. Given below are some stages of human evolution. Very easy. ये बहुत ज़्यादा learning था, इसमें logical कुछ नहीं है, आपको इसको याद करना था. We'll start with के Homo habilis सबसे पहले थे. Homo habilis ये था, तो हमारा आंसर हमेशा A से स्टार्ट होगा. I can find here. Homo habilis के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो आए थे वो आए थे Homo erectus. Homo erectus के बाद में Homo neanderthalensis आए थे. तो A, B, C एंड लास्ट में आते हैं Homo sapiens. We belong to Homo sapiens sapiens. हमारे पहले जो लोग थे they were into Homo sapiens. So they are absolutely last one. तो B हमारा लास्ट है. Answer of 163 goes for option number 4. Match the following list. This is also another something that very easy. ये आपको आपके सेल वाले चैप्टर में मिलेगा. एक्सोनीम. एक्सोनीम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म, जिसके लिए हम इसको क्या देते हैं, सीडिया एंड फ्लैजेला. ए का आंसर होना चाहिए 2. कहां पर दिख रहा है? एक हमको ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, एक हमको ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है. ए का आंसर होना चाहिए कार्टव्हील पैटर्न. कार्टव्हील पैटर्न होता है हमारे पास में सेंट्रीओल में, क्योंकि सेंट्रीओल रहता है 9+2 अरेंजमेंट या तो 9+0 अरेंजमेंट का. तो ये जो रहता है एक कार्टव्हील, एक चक्के की जैसे अरेंजमेंट में रहता है. तो कार्टव्हील का रहेगा आपका 1. I can see here option number 4 is getting correct. Crista, very easy. Crista किसमें रहता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है. तो आपका आंसर आ जाएगा C का 4. And going for satellite, because satellites are always present in chromosome. Satellite ऐसे ही क्रोमोसोम रहता है आपके. क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा ऐसे यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. कंस्ट्रिक्ट होके अलग से ऊपर में हिस्सा निकलता है. उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम. So your answer goes for option number 4. Next. ये सारे फिशेस के नाम है बिलोंगिंग टू किंगडम एनिमल. जो हमारा सबसे पहले जो फिश है इसका नाम है पेटेरोफाइलम. पेटेरोफाइलम ऐसे फिश का नाम है जिसका है नाम एंगलफिश. नेक्स्ट है माइसिन. माइसिन गोस फॉर हैगफिश. पिटेरिस गो फॉर सॉफिश एंड एक्सोसिटस गोस फॉर फ्लाइंग फिश. तो लेट्स चेक कौन सा ऑप्शन हमको सही लग रहा है. दिस इज समथिंग वेरी लर्निंग, देयर इज नो लॉजिक ओवर हियर. तो पेटेरोफाइलम गोस फॉर एंगलफिश. ए का आंसर है 3. सो आई कैन फाइंड दीस 2 ऑप्शंस. माइसिन का आंसर है हैगफिश. तो बी का आंसर होना चाहिए. आई हैव गॉट माय आंसर ऑलरेडी. ब्रिटिश का आंसर होना चाहिए सॉफिश, बिल्कुल सही. और एक्सोफिटस का नाम होता है फ्लाइंग फिश. तो आपका आंसर है इसका 2, ऑप्शन नंबर 2. 165 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2. 166 मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. सबसे पहले अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. ये ऐसा एक पेप्टाइड है जो कि रिलीज होता है जब कभी आपके लंग में इन्फ्लेमेशन होता है, जब कभी आपके लंग में इन्फेक्शन होता है. ये कब होता है?
व्हेन यू आर अ क्रॉनिक स्मोकर, अगर आप कंटिन्यू स्मोकिंग करते हैं आपके लंग्स में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके वजह से यू कैन हैव अ कंडीशन कॉल्ड एज एम्फाइसीमा, जो कि एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. गोइंग फॉर Cry1AB, this Cry1AB belongs for corn borer, Cry1AC belongs for Corbin hormone, and enzyme replacement therapy goes for ADA deficiency. जिनमें भी ADA नाम की deficiency है, ये उन लोगों के लिए हमको क्या करवाना चाहिए, enzyme replacement therapy. Let's check. Alpha-1 antitrypsin goes for 3, हमको ये दोनों ऑप्शन में दिख रहा है. Next for Cry1AB goes for corn borer, so here is my answer, option number 3 is the correct answer for 166. Next, the TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens stands for, ये किसके लिए स्टैंड करता है? वेरी इजी, जिसने अच्छे से पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी उसके पास में इसका आंसर होगा. TI stands for ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ओके, सो ऑप्शन 3 is the correct answer for 167. Once again, this question belongs to kingdom animal Pleurobrachia. Pleurobrachia ये ऐसा जानवर है जो कि कौन सी फाइलम को बिलोंग करता है? तो जो बिलोंग करता है टीनोफोरा को. प्लूरोब्लेकिया का कॉमन नाम होता है सी गूसबेरी. सी गूसबेरी बेसिकली आंवला जैसा जो एनिमल रहता है वो इट गोस फॉर टीनोफोरा. एक आंसर होना चाहिए 2, तो मुझे एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है. रेड्यूला, रेड्यूला इज द ग्रास्पिंग ऑर्गन और ईटिंग ऑर्गन फॉर स्नेल. स्नेल ऐसा जानवर है जो रेड्यूला की मदद से खाना खाता है. तो स्नेल आता है कौन से फाइलम में? मोलस्का में. रेड्यूला का आंसर जाएगा 1, सो आई कैन सी माय आंसर इज नियर बाय सेकंड. स्टोमोपॉड, स्टोमोपॉड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डा. स्टोमोपॉड ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि साइंटिस्ट लोगों से कंफ्यूजन हो गया था. दे हैव कंसीडर्ड स्टोमोपॉड एज नोटोपॉड एंड देन later on they considered hemichordates as the part of chordates, and later on they realized this is something wrong and hemichordata was made into another phylum. Air bladder is always present in fishes. फिश के लिए हमारे पास में ऑस्टियोकाइनेसिस है, एंड योर ऑप्शन नंबर 2 गोस फॉर करेक्ट. 168 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2. Which of the following is not a traditional or a natural contraceptive method? Natural methods में हमारे पास में सिर्फ 3 है according to NCERT, जिसका नाम है coitus interruptus, another one is periodic abstinence, and last one is lactational amenorrhea. इनका मतलब है coitus interruptus के at the time of sexual intercourse the male partner will withdraw his penis outside the female reproductive tract, that is considered as coitus interruptus. Periodic abstinence, as the WHO has given us a 1 week duration, like from the day 11 to day 17th of the menstrual cycle, the partner of the couple should avoid the sexual intercourse. So this is considered as periodic abstinence because 14th day is considered as the most fertile day into the female cycle. Next one is lactational amenorrhea. जो भी फीमेल अगर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होगी एट दैट टाइम उसके बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल, हार्मोन के जो लेवल है वो ज्यादा रहते हैं, जिसके वजह से FSH और LH रिग्रेस हुए रहते हैं, और उसके वजह से द फीमेल इज इनटू द अमेनोरिया कंडीशन. अमेनोरिया का मतलब होता है देयर इज नो मेंसेस. So coitus interruptus, periodic abstinence and lactational amenorrhea are the examples of natural contraception. So the only option we are having is Walters. Walters is not a natural contraception. This is into something into the barrier method. Following are the stages of cell division. Cell division का जो सबसे पहला फेज रहता है वो रहता है gap 1 फेज. हमारा आंसर E ऑप्शन से चालू होना चाहिए, तो E और E I have already found 2 options which are correct. Another one, my second step goes for synthesis phase. Synthesis phase में मेरे पास में ऑप्शन C आना चाहिए. E, C. Then comes for gap 2 phase. फिर उसके बाद में gap 2 phase के बाद में मेरे पास में आता है karyokinesis, का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, and last goes for cytoplasm division. So my answer goes for option number 4. Next question. Which of the following factors will not affect Hardy-Weinberg principle? हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का मतलब ये था कि इनटू द इवोल्यूशन, ये इन्होंने बताया करके कि हम ऐसे फैक्टर्स देंगे जिनके वजह से इवोल्यूशन नहीं होगा. तो इवोल्यूशन किनके वजह से हो रहा था वो सारे हमारे पास में ऑप्शन है, कि जिसका नाम है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. अगर जीन्स में रिकॉम्बिनेशन हुआ, सपोज दिस इज सम क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर साइड एंड अनदर वन, दीस आर दोस क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर साइड. अगर हमने इनका कॉम्बिनेशन करवाया तो वी आर गोना गेट समथिंग कुछ ऐसा, कि कुछ हमारे पास में जो चाइल्ड होगा वो कुछ ऐसा आएगा. सो दिस इज समथिंग न्यू, हमारे पास में कुछ नया कैरेक्टर मिला है. तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विल ब्रिंग इवोल्यूशन, इससे इवोल्यूशन होगा क्योंकि कुछ तो नया आया. जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन का मतलब होता है कि फ्यू पीपल फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम नेपाल
Nepal, they have migrated to India and then later on they married with an Indian girl. तो वहाँ का कुछ नेपाल का जीन आया है इंडिया, तो we will say that this is gene migration. Gene migration will 100% for will occur evolution. इससे evolution 100% होगा क्योंकि एक नेपाली का बच्चा इंडियन के साथ में बन रहा है तो कुछ अलग बच्चा बनेगा. नेक्स्ट गोज फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कहते कि कुछ ऐसे सडन कंडीशंस की वजह से मे बी सुनामी हो या मे बी कुछ लैंडस्लाइड हो जिसके वजह से एक लैंड का हिस्सा टूटकर अलग जगह चला गया हो. तो जब यहाँ पर ये चला जाएगा और यहाँ पे कोई अनदर लैंड है उसके पास में तो मे बी यहाँ के और यहाँ के जीन एक साथ में मिल जाए तो इससे भी क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी इवोल्यूशन होगा, कुछ नया बनेगा. लास्ट ऑप्शन है कांस्टेंट जीन पूल. कांस्टेंट मतलब क्या हो रहा है कि सपोज हमने एक आइलैंड ले लिया, आइलैंड में हमने 100 लोगों को रखा है. ये 100 लोगों को अलाउ नहीं किया कि ना आप बाहर जाए ना आप अंदर आए, ना कोई बाहर से अंदर आएगा, ना आपको कहीं हम बाहर जाने देंगे. तो इससे क्या होगा कि यहाँ की इनके जो जीन है ये एज इट इज भी रहेंगे. इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट जीन पूल. क्या यहाँ पर इवोल्यूशन होगा? नहीं होगा. तो हमारा आंसर 171 का जाएगा ऑप्शन नंबर 4. ओके, these are some parts of brain. Brain के parts है pons. Pons is responsible for basically connecting different regions of brain. ठीक है, अगर आपको ये नहीं मालूम तो हम दूसरी तरफ में आते हैं hypothalamus. Hypothalamus has basically more neurons. Hypothalamus brain का वो हिस्सा रहता है कि जो कि cerebrum में रहता है, जो कि cerebrum में 100% cerebrum में रहता है. cerebrum में यहाँ पर क्या रहता है basically बहुत सारे सेल बॉडीज लगे रहते हैं. सेल बॉडीज को आपकी एनसीईआरटी बोलती है न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स. तो बी का आंसर हो जाएगा आपका 4. देखिए बी का आंसर 4 आपको यहाँ दिख रहा है. मेडुला. मेडुला हैज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर्स लाइक योर रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, योर वोमिटिंग सेंटर, योर कफिंग सेंटर. तो मेडुला में आपके इंपॉर्टेंट सेंटर्स है जैसे कि कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन. C goes for 2. बिल्कुल C goes for 2. Then goes for cerebellum. Cerebellum is responsible for the balance in your body. आप जो सीधा चल सकते हो वो किसकी वजह से चल रहे हो? Cerebellum की वजह से. Can you see regulates posture and balance in the body? D goes for option number 1. बिल्कुल आपका A आ जाएगा सही and इसका आंसर है option number 2. Once again, match the list. Very easy. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक आंसर होना चाहिए. आई कैन फाइंड हियर वेरी इजी. एक आंसर है इसमें से फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेसिडुअल का कैपेसिटी का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी वॉल्यूम. ये सब ऐसा है करके कि समथिंग दिस इज वेरी लर्निंग पार्ट, आपको इसको याद करना पड़ेगा. Once again आपका आंसर आ रहा है इसके करीबन. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि आप टाइडल वॉल्यूम तो ले ही गए हैं, साथ साथ में आप और कितनी अंदर सांस भर सकते हैं हम उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. डी का आंसर आ जाएगा 3. रिमेनिंग जो है आपकी जो वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. तो आपका आंसर है इसका 3. 173 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3. Which of the following is an autoimmune disorder? What do you mean by autoimmune disorder? ऐसा डिसऑर्डर जहां आपका सेल खुद अपने सेल को मार रहा है. There is no reason, अभी तक की कोई रीजन हमें मिला नहीं है. तो ऑटोइम्यून में आपका खुद का सेल अपने आप को मार रहा है. ऑप्शन नंबर A, myasthenia gravis is 100% an autoimmune disorder. Moving ahead, rheumatoid arthritis ये भी एक autoimmune disorder का पार्ट है. Gout is not an autoimmune disorder. This is because gout होता है बेसिकली जब यूरिक एसिड के छोटे-छोटे क्रिस्टल्स आपके जॉइंट में जमा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं gout. Muscular dystrophy. Muscular dystrophy is not an autoimmune disorder. ये एक genetic disorder है. And last option we are having is SLE, systemic lupus erythematosus. ये भी एक आपका autoimmune disorder है. तो your answer goes for A, B and E. A, B and E. So the correct answer goes for option number 2. 174 का आंसर है option number 2. Which of the following is not the component of fallopian tube? Very easy question. अगर मैं यहाँ पे female reproductive system बनाऊँ, ऐसा कुछ आपके पास में होता है fallopian tube and this is ovary. ये जो fallopian tube है, it begins with fimbriae. सबसे पहला पार्ट आ जाएगा fimbriae. fimbriae के जो बाद का पार्ट है, इसका नाम होता है infundibulum. infundibulum के बाद का जो पार्ट है ampulla. ampulla is the widest part of fallopian tube जहाँ पे fertilization होता है. And next part है isthmus. तो ये सारे पार्ट है हमारे fallopian tube के.
जो हमारे पास में यूटेराइन फंडस है वो मतलब कि यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा फैलोपियन ट्यूब का क्या हिस्सा है, तो आपका आंसर रहेगा कि हाँ इसमें बस है, इंफेंडिबुलम है, एम्ब्यूला भी है, तो बचता क्या है, यूटेराइन फंडस इज नॉट द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सो आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर ए। Once again, बहुत easy question. Match list 1 and list 2. Fibrous joint. Fibrous joint इतने ज़्यादा strong joint रहते हैं आपकी body के कि वो कहाँ पर रहने चाहिए? जो सबसे ज़्यादा sensitive area आपकी body का, that is your skull. Skull आपका इतना ज़्यादा sensitive area है कि वहाँ पर हमें कौन से joint चाहिए? Fibrous joint चाहिए. तो इसका आंसर है 3. Option number A का आंसर होना चाहिए 3 and here we are very close to our answer. कार्टिलेजिनियस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो रहते हैं वो आपके रिब्स और स्टर्नम के बीच में रहते हैं, और अनागर ये कहाँ रहते हैं, आपका जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके बीच में। यहाँ पर हमारे पास में कौन से जॉइंट है, कार्टिलेज से बने हुए जॉइंट है। तो ये अब आप लोगों का आएगा एडजेसेंट टू वर्टेब्रे। बी का आंसर होगा 1 हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मतलब कि ऐसे जॉइंट जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे कि आपका दरवाजा है उसकी वजह से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुल सकते हैं, ठीक है। गोइंग अगेन फॉर योर नी, आपका जो पैर है, पैर भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर या नीचे खुलता है, तो हिंज जॉइंट गोस फॉर नी, हेल्प्स इन लोकोमोशन। लास्ट गोस फॉर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है बेसिकली आपका ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, योर ह्यूमरस एंड योर पेक्टोरल गर्डल व्हिच गिव्स यू अ रोटेशनल मोशन, दिस गोस फॉर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 176 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। The flippers of penguin and dolphin are the example of, very easy, NCERT में direct sentence दिया है, they are the examples of convergent evolution. Convergent evolution का मतलब ये रहता है कि ऐसे वो organisms जिनका origin अलग अलग हो, because penguin is something different and dolphin is something different, they are having different origins, but उन लोगों के जो organs है वो एक जैसे काम को करने के लिए अपने आप को adapt किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा इसका convergent evolution। 177 का आंसर है 3। Direct statement given into the NCERT. Given once again, very easy questions. In the nephron, the descending limb of loop of Henle. ये हमारा nephron है. ये PCT. This is something descending limb of loop of Henle. This is ascending. This goes for DCT and this is connecting the. Is impermeable to water and permeable to electrolytes. ये जो descending limb है, इनका बोलना है कि it is impermeable to water. This is absolutely wrong statement क्योंकि descending limb of loop of Henle is only permeable to water and ascending limb of loop of Henle is only permeable to ions or electrolytes. The proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border, ये तो बात सही लग रही है, and increases the surface area for reabsorption क्योंकि maximum reabsorption कहाँ से होता है, PCT से होता है। तो statement 2 is true and statement 1 is false. Let's see statement 1 and 2. Statement 1 is false and statement 2 is true. Your answer goes for option number 4. I hope, am I clear? We are going good. In both the sexes of cockroach, a pair of jointed filamentous structure called as inner surface are present on. ये कहाँ पर present है? तो ये short answer है, NCERT ने दिया है, it is given on 10th segment. तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 179 का आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2। One second. Which of the following factors are favorable for formation of oxyhemoglobin in the alveoli? Oxyhemoglobin का मतलब क्या होता है कि ऐसा हमारे पास में hemoglobin का molecule है which are having 2 chains of alpha and 2 chains of beta. ऐसा हमारे पास में hemoglobin का molecule है। ये जब अपना पूरा completely अपने आप को saturate कर लेगा ऑक्सीजन से, तो इसका नाम हो जाता है oxyhemoglobin। ये कब होगा? ये कब बनेगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली लंग्स में ज्यादा होगा, अल्वियोलाई में ज्यादा होगा, क्योंकि अल्वियोलाई के पास में डायरेक्ट सप्लाई है। अल्वियोलाई के पास में डायरेक्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा रहना चाहिए। Where we can find high PO2, we are close to our answer. Moving ahead, ये क्यों हो रहा है? Because there is lesser H+ concentration या high PCO2. अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ज्यादा होगा? तो ये ऑप्शन आपका कंप्लीटली गलत हो जाएगा एंड हियर वी आर विद आवर आंसर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 180 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। The following diagram shows restriction size in E. coli cloning vector PBR320 to find the role of X and Y genes. ये पूरा का पूरा डायग्राम आपकी NCERT में है। जो बच्चा NCERT पढ़ के गया होगा उसको ये चीज मालूम होगा कि X का मतलब क्या होता है और Y का मतलब क्या होता है।
X ऐसी जीन है जहां पर हमको दिखता है ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां से रेप्लिकेशन चालू होगा, और Y का मतलब होता है ROP। ROP इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग प्लाज्मिड, वो जो रेप्लिकेशन यहां से हो रहा है उसके लिए हमको जो प्लाज्मिड चाहिए वो वहां से होगा। तो द जीन X इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ लिंक्ड DNA, क्योंकि यहाँ से आपकी कॉपी बन रही है ORI यानी वहां से रेप्लिकेशन चालू होगा। रेप्लिकेशन किसका करते हैं हम लोग? DNA का रेप्लिकेशन करते हैं। तो कितने DNA की कॉपी बनाने हैं वो कहाँ से होगा? ORI से डिसाइड होगा। और यहाँ पे तो Y प्रोटीन इज इन्वॉल्वड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, क्योंकि ये जो हमारा प्लाज्मिड है इसका भी अगर आपको मल्टीपल रेप्लिकेशन करवाना है तो इसका जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर 2। मूविंग अहेड, वेरी इजी क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम ये एक ऐसा डिसऑर्डर है क्योंकि वहां पर हो रही है ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 मतलब कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम था जो कि पेयर में होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लग गया, इसलिए हमने इसका टर्म क्या यूज किया है, ट्राइसोमी 21, यानी 21 नंबर के क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ रहा है, तो दिस वाज व्हाट 21st क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ए का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है मुझे, यस। Alpha thalassemia is something related with the disorder in chromosome number 16. Your beta thalassemia is related with the chromosome number 11. Then Klinefelter syndrome, ये तो ऐसा है करके कि भैया हम सबको मालूम है कि मेल रहता है XY, बट गलती से क्या होता है कि कुछ तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम मेल के साथ में आ जाता है एंड द पेशेंट इज कंसीडर्ड एज Klinefelter syndrome। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Very simple, very sorted, something which you have to memorize. Next, going ahead, consider the following statements. Annelids are true coelomates. Do you think annelids are true coelomates? Then moving ahead, Polypheras are pseudocoelomates. Impossible, क्योंकि Polyphera से हम लोग ने ऐसे जानवर देखे थे जिनके पास में सीलम नाम की कोई चीज ही नहीं है। They are the most primitive animals. Eschalminthes are acoelomates. No, Eschalminthes ही तो जो पहली फाइलम थी कि जहां से सीलम की शुरुआत हुई थी, और हम लोग बोलेंगे platyhelminths are pseudocoelomates. No, this is once again absolutely wrong because eschalminthes के पास में था pseudocoelom. Moving ahead, तो हमारा आंसर यहाँ पर जो सही बनता है वो है ये, annelids are true coelomates। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जिसका जवाब है A only। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड बेसिकली एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है कि वायरल डिसऑर्डर है? जो बच्चा ये जानता है वो बता देगा कि ये एक वायरल डिसऑर्डर है, बहुत कॉमनली लोगों को होता है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के लिए सिर्फ एक ही वायरस दिया है जो कि है राइनोवायरस। सिर्फ एक ही वायरस का नाम आपके एनसीईआरटी ने बताया है, बाकी और कोई भी वायरल डिसऑर्डर एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करती है। कॉमन कोल्ड कोल्ड फॉर राइनोवायरस। ऑप्शन ए का आंसर है 3। वी आर वंस अगेन क्लोज टू आवर आंसर, हीमोजोइन। हीमोजोइन वो एक पिगमेंट है, जब कभी किसी पेशेंट को मलेरिया होता है, मलेरिया में बेसिकली कौन अटैक करता है? प्लाज्मोडियम अटैक करता है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये सबसे पहले किसको अटैक करेगा? हेपेटोसाइट्स को अटैक करता है। व्हाट डू यू मीन बाय हेपेटोसाइट्स? दे आर दोस सेल्स ऑफ लीवर। हेपेटोसाइट को डैमेज करने के बाद में ये लोग कहां आते हैं? प्लाज्मोडियम, दे अटैक आरबीसी। जब ये आरबीसी को अटैक करते हैं, आरबीसी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद में जब आरबीसी बर्स्ट आउट हो जाती है, तो आरबीसी जो बर्स्ट हुई वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइन की ही तो वजह से हमें फीवर के एपिसोड्स जो आते हैं विदिन 12 आवर्स, 48 आवर्स, 24 आवर्स, जो भी एपिसोड होगा वो हमें हीमोजोइन की वजह से आता है। तो कैन यू सी द आंसर ऑप्शन नंबर 1, प्लाज्मोडियम हीमोजोइन गोस फॉर द 1। वी आर अगेन क्लोज। बी का आंसर है 1। विडाल टेस्ट, लर्निंग विडाल टेस्ट कब करना चाहिए? जब कभी आपको लग रहा है किसी को टाइफाइड है, किसी में टाइफाइड के सिम्टम्स आ रहे हैं, तब आप उस पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आप जाकर विडाल टेस्ट करवाइए। एंड एलर्जी, ऑब्वियसली एलर्जी का मतलब होता है छींके आना, आंखों से पानी जाना, आंख में खुजली आना, मुंह में खुजली आना, नाक से पानी जाना, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डस्ट एंड माइट्स। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। 184 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। कोकेन, कोकेन हमें कहां से मिलता है? कोकेन हमें उस प्लांट से मिलता है जिसका नाम है इरिथ्रोजाइलम फोटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर जाएगा 3। नेक्स्ट फाइन, वी आर क्लोज टू आवर आंसर। हेरोइन, हेरोइन ऐसा एक मटेरियल, एक ड्रग है जो कि हमें मिलता है मॉर्फिन से, और मॉर्फिन कहाँ से मिलता है? तो हमें पैपावर सोम्निफेरम से मिलता है, या तो फिर आपको अगर याद होगा इसका नाम है मिल्क ऑफ पॉपी। वी कैन आल्सो कॉल दिस एज मिल्क ऑफ पॉपी। वी आर अगेन क्लोज। हेरोइन का आंसर बी का आंसर है 4।
फिर बाद में हम लोग जब ऊपर आ रहे हैं मॉर्फिन, एज आई हैव सेड मॉर्फिन इज बेसिकली यूज्ड बाय डॉक्टर्स। डॉक्टर्स मॉर्फिन को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी। अगर किसी का सर्जरी हुआ है, वो पेशेंट को आपको सुला के रखना है ताकि उसको पेन ना हो, वो पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो, तो हम उस पेशेंट को क्या देंगे? मॉर्फिन देंगे। एंड देन मैरिजुआना। मैरिजुआना मतलब कि होता है गांजा। हम लोग इसे हिंदी में बुलाते हैं या अपने लैंग्वेज में हम इसे क्या बुलाते हैं? गांजा। गांजा हमको मिलता है कैनाबिस सटाइवा से। So your answer is very close for option number 4. 185 का आंसर है option number 4. Next question. Statement 1. Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely. ये जो statement है, ये statement गलत है. This statement is false. Moving ahead, according to Gauss principle, during competition the inferior will be eliminated. अगर आप जनरल, अगर ह्यूमन का भी अगर आप एग्जांपल लेते हो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, देयर इज समबडी हु इज वेरी पुअर, जिसके पास में घर भी नहीं है, कपड़ा भी पहनने को नहीं है, वो व्यक्ति को बीमारियां जल्दी होगी कि तुम्हें होगी? डिपेंड्स, है ना। वो व्यक्ति इजीली मरने की कगार पे रहेगा, वो भूखमरी से मरेगा, उसके पास में खाने को नहीं है, तो वो खुद ही खुद एलिमिनेट हो जाएगा। क्या उसका और आपका कोई कंपटीशन है? नहीं है। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। अगर उसके पास में सोर्सेस ही नहीं है तो वो जिएगा कैसे? This statement is true. Let's find out true and false. Statement 1 is false and the statement 2 is true. Option number 4 is the correct answer for question number 186. The following are the statements about non-chordates. Non-chordates में pharynx is perforated by slits. ये एक बार का सही लग रहा है, ठीक है। Notochord is option 100% ये भी है। Central nervous system is dorsal, गलत बात है। Heart is dorsal, this is something, and posternal tail is present. So option number A, B and E. Let's see A, B and E. Sorry, this is something wrong. We will go for option number B. Notochord तो नहीं होता है, ठीक है। Next हमारे पास में heart उनका dorsal रहता है, posternal tail is absent. So option number B is correct. Option number D goes for and E goes for B, D and E. Option number 3 is the correct answer for question number 187. क्योंकि non-chordates के पास में तो notochord है ही नहीं। अनादर अगर उनके पास में heart होगा तो heart भी कहाँ होगा? dorsally present होगा। And they have posternal tail is absent, क्योंकि posternal tail तो mostly mammals के पास में, जैसे कि गैया, cow के पास में जो tail है वो anus के पीछे है। बिल्ली, उसके पास में जो tail है वो है anus के पीछे। अगर मैं birds की भी बात करूँ तो birds में भी कौवा देखा है, pigeon देखा है, sparrow देखा है, इन सब की जो पूंछ है वो कहाँ है? उनके एनस के पीछे। तो आपका आंसर जाएगा बी, डी एंड ई ओनली। Once again, the cerebral hemisphere are connected by nerve tract known as corpus callosum. आपके पास में दो cerebral hemisphere रहते हैं, एक है आपका राइट साइड, एक है आपका लेफ्ट साइड। कुछ न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो यहाँ पर है, और इन लोगों का जो एक्सॉन है वो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो ये जो भी कनेक्शन बना है बीच में, इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। सो ये बात है सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टेटमेंट 1 is true, this is correct. The brainstem consists of medulla oblongata, pons and cerebrum. This is something wrong. अगर आपको याद होगा कि आपका brainstem का जो डायग्राम रहता है वो शुरुआत होता है यहाँ से, ये है आपका medulla oblongata। medulla के बाद में जो अपर पोर्शन आता है वो है pons का, और pons के जो ऊपर में आता है वो होता है मिड ब्रेन का। तो ये बनी है ब्रेनस्टेम, क्योंकि जो आपका सेरेब्रम है वो आता है पॉन्स और मेडुला के पीछे में। तो ब्रेनस्टेम यानी एक डंडी जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसके लिए आपका स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाता है गलत। सो लेट्स फाइंड स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 188 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। The structures which are used for storing food, ये बेसिकली कॉकरोच के बारे में बात चल रही है। कॉकरोच में अगर हमको फूड स्टोरेज करवाना है तो हम हमेशा कहाँ करवाते हैं? क्रॉप में। एक आंसर होना चाहिए 4। We are getting again closer to our answer. Ring of 6 and 8 blind tubes at the junction of foregut and midgut. अगर ये foregut है और ये उसका midgut है, यहाँ पे बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई है। इन ट्यूब्स का नाम होता है Malpighian tubes, which are used for excretion. So let's see Malpighian tubes. B का आंसर है 3, B का आंसर है 3। Then rings of 100 and 150 colored filaments again, तो इसका भी नाम हमारा पास में आ जाएगा gastric cica। And then the structures used for grinding food, अगर उससे हमने फूड को पचाना है तो वो क्या यूज करता है? gizzard। gizzard is basically mixer sort of structure into the cockroach। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3।
189 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक्सोऑप्थेल्मिक गॉइटर, ये ऐसी कंडीशन है जब आपका थायराइड हाइपर सीक्रेट हो रहा है, जब आपकी बॉडी में T3 और T4 नाम के जो हार्मोन्स हैं ये ज्यादा सीक्रेट हो रहे हैं। जब ये हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होंगे तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ जाएगा। आप कितना भी खाना खाएं आपके मुंह आंख को नहीं लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। मेटाबॉलिज्म बढ़ गया बिकॉज ऑफ हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। और एक्सोऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मो मतलब क्या है, एक्सो मतलब बाहर आता है। यू कैन सी प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स, वेरी इजी। एक आंसर होना चाहिए, कैन बी फाइंड, एक आंसर है 3, एक आंसर है 3। एक्रोमेगाली, एक्रोमेगा, मेगा यानी यही बता रहे हैं, मेगा बड़ा, क्यों बड़ा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गए, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, खली जैसा दिखने लग गया है। तो बी का आंसर होना चाहिए 4, अगेन बी का आंसर है 4, बी का आंसर है 4। Cushing syndrome, Cushing syndrome is excessive secretion of cortisol, moon phase and hyperglycemia। cortisol वो हार्मोन है जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में रिलीज करती है, एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो। जब भी कभी आपका बॉडी कंटिन्यूअस स्ट्रेस में है, कोई ना कोई विचार कंटिन्यू चल रहा है, घर में कोई टेंशन नहीं, आप कंटिन्यू एक्सरसाइज में लगे, बॉडी बिल्डिंग में लगे, कंटिन्यू अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस है तो आपका बॉडी रिलीज करता है कॉर्टिसोल, तो उसकी वजह से होगा Cushing syndrome। सी का जवाब होना चाहिए 1 एंड हियर वी आर विद आवर आंसर। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म इज बेसिकली उन बच्चों में होता है जो मां प्रेग्नेंट है और उनके पास में हो रहा है हाइपोथायराइडिज्म। जब वहां पे T3 T4 का सिक्रीशन कम हो रहा है तो उसका बच्चा मेंटली रिटार्डेड बनेगा, उसका बच्चा एबनॉर्मल बनेगा, और वो होता है क्रेटिनिज्म। देयर इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ मतलब कि वो बच्चे का ग्रोथ बराबर नहीं होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 190 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 191, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। आपके पास में दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक का नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरे का नाम है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हमारे पास में होते हैं वो है 75% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स, और जो जक्स्टामेडुलरी है वो है हमारे पास में 15% ऑफ नेफ्रॉन्स। अगर मैं एक किडनी का स्ट्रक्चर बताकर आपको बनाऊं तो आपको मालूम होगा कि किडनी का जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है मेडुला, और जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है कॉर्टेक्स। हमारे मेडुला में होते हैं ऐसे कुछ पिरामिड्स जिनको हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड्स और मेडुलरी पिरामिड्स। ये जो पिरामिड्स है इनके बीच का ये वाला जो एरिया रहता है इसका नाम है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। अब अगर हम ऑप्शंस के साथ में जाएंगे, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। जी नहीं, जो जक्स्टामेडुलरी है, जक्स्टा का मतलब होता है पास में, जो मेडुला के पास में है, मतलब कि ऐसे नेफ्रॉन जो कि मेडुला के अंदर में जा रहे हैं। ये ऐसे है नेफ्रॉन जो कि मेडुला में डीप जा रहे हैं, ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनरी मेडुला के अंदर में डीप जाता है वो होते हैं हमारे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये बात तो गलत होगी। Renal corpuscles of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of the renal medulla। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। Loop of Henle's juxtamedullary nephrons runs deep into the medulla, जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होता है। Juxtamedullary nephrons outnumber the cortical nephrons। outnumber मतलब कि इनका बोलना है juxtamedullary nephrons ज्यादा है या कम है, तो juxtamedullary nephrons कम है, तो ये outnumber कैसे करेंगे, जबकि cortical nephrons इसको outnumber करता है। ज्यादा कौन से है, cortical, कम कौन से है, juxta। तो आपका आंसर जो करेक्ट है रिगार्डिंग दिस इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन। अगर हम कोई एंजाइम का एक्शन देखेंगे तो सबसे पहले एंजाइम को एक सबस्ट्रेट के बाइंडिंग साइट पर लगना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है सबसे पहले आएगा ई। देखते हैं ई हमारे पास यहाँ है और यहाँ है। नेक्स्ट जो रहता है वो जो होगा उसका आंसर रहेगा आपका सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी कि अगर ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में सबसे पहले ये क्या लग जाएगा, एंजाइम लग जाएगा, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। आपका ऑप्शन नेक्स्ट आता है ए। ई के बाद में ए, वी आर अगेन क्लोज। नेक्स्ट आएगा आपका केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट ग्रुप। अभी अगर एंजाइम इसके साथ में लगेगा तो इसमें कुछ तो काम करेगा, तो वो इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा डी। उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो तो ऑप्शन आएगा सी। प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, उसके बाद में आपका जो एंजाइम है वो फ्री है, ये इसने जो काम कर लिया, इसने क्या कर लिया, इसने प्रोडक्ट बना लिया। अब ये फ्री है कि ये आगे चल के कोई भी काम कर सकता है। तो आपका आंसर आएगा 192 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आपके बॉडी में सिर्फ एक ही यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ही
ग्लैंड है जो कि यूनिसेल्युलर है, जिसका नाम है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स आर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स जो कि सिंगल यूनिसेल्युलर है। ऑप्शन नंबर ए का है 3। लेट्स सी कहां पर है, वी आर अगेन क्लोज टू आवर आंसर। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम जो रहता है वो आपके सलाइवा, आपके बक्कल कैविटी में रहता है। ऑप्शन नंबर बी का आंसर आना चाहिए 4। वी आर अगेन क्लोजर। मल्टीसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मल्टीसेल्युलर जो आपके मुंह में है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। सी का आंसर आएगा 1। एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ, और यहां अगर आप पूरा लिस्ट देख रहे हैं इसमें से सिर्फ एक अगर आपको दिख रहा है एंडोक्राइन तो कौन सा है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर दोज ग्लैंड जिनके पास में डक्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड जिनके पास में डक्ट नहीं है। हालांकि देखा जाए पैंक्रियास इज एन हेटेरोक्राइन ग्लैंड, पर यहां पे कहीं हेटेरोक्राइन का ऑप्शन में कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। 193 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरा, दिस इज समथिंग लर्निंग टॉपिक। मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा वो एरा है जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास में क्या रहते हैं, रेप्टाइल्स। ऐसा वाला एरा जिसमें हमारे पास में क्या रहने वाले हैं, रेप्टाइल्स। ए का आंसर होने वाला है 3। वी आर अगेन क्लोज टू आवर आंसर। प्रोटियोजोइक एरा। प्रोटियोजोइक एरा वो रहता है, I guess my pen is not visible. मेसोजोइक एरा वो एरा रहता है जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं रेप्टाइल्स। नेक्स्ट है प्रोटियोजोइक एरा, जहां पर हमारे पास में सबसे पहले ना बैक्टीरिया साइट है, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। तो यहाँ बैक्टीरिया तो कहीं लिखा नहीं, तो वी विल गो फॉर द ऑप्शन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। जो लोअर है इनवर्टिब्रेट्स है, क्योंकि अभी तो मॉडर्न इसमें सारे वर्टिब्रेट एनिमल्स है, तो इसका ऑप्शन जाएगा बी का आंसर जाएगा 1। कहां है बी का आंसर 1? हमारे पास में 3 ऑप्शन है। मेसोजोइक एरा गोस फॉर ऑप्शन नंबर 3, तो हमें यहां कहीं तो भी हमारा आंसर ढूंढना है। बी का भी 1 है, बी का भी 1 है। सीनोजोइक एरा, ऐसा एरा जिसमें हमारे पास में मैमल्स आते हैं। सी का ऑप्शन आएगा 4 एंड हियर वी आर विद द आंसर। पैलियोजोइक एरा गोस फॉर फिशेस एंड एम्फीबियन, तो इसका आंसर होगा 194 का ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। Given below are the two statements. Mitochondria and chloroplast have double membrane bound organelles. 100% correct. Statement 1 is true and correct. Another one goes for inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast. ये नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों का impermeable है, दोनों का less permeable है। यहाँ पर कोई comparison दिया नहीं है NCERT में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का एक जैसा है, दोनों का जो सेकेंड मेम्ब्रेन है वो impermeable है, तो this is something incorrect. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 195 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 196, ये तो हमारा हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। दे आर समथिंग टॉकिंग अबाउट ईसीजी। अगर मैं ईसीजी का ग्राफ बना रही हूं, ऐसा सबसे पहला जो हमारे पास में आता है ईसीजी के ग्राफ में वो आता है पी वेव। पी के बाद में जो हम बनाएंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में थोड़ा सा जाके हमारे पास में आता है टी। राइट इज एज टी क्यू आर एस टी, ऐसा हमारा कुछ ईसीजी होता है। टी वेव हमारे पास में अगर मैं कार्डियक साइकिल की बात करूं तो सबसे पहले होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन को हम यूज करेंगे टर्म डीपोलराइजेशन। उसके बाद में हमारा एट्रियल रिलैक्स होगा, तो हम लोग लिखेंगे एट्रियल डीपोलराइजेशन। थर्ड स्टेप रहता है हमारे पास में वेंट्रिकुलर depolarization, and the fourth one is again जब हमारा ventricle relax करेगा it is called as ventricular repolarization। जो P wave है वो डिनोट करता है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि एट्रियल डीपोलराइजेशन। कहां पर है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया? P wave goes for 3। ऑप्शन ए का आंसर आएगा 3। यही पे तो दिख रहा है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स बताता है कि आपका वेंट्रिकल डीपोलराइज हो गया है। एट्रियल डीपोलराइजेशन का कोई भी वेव आपका ईसीजी मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो इतना आराम से रिलैक्स होता है। ईसीजी मशीन इतने छोटे इंपल्स पकड़ नहीं पाता, इसीलिए हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन का कोई भी वेव हमारे पास में नहीं होता। तो QRS कॉम्प्लेक्स विल गो फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। बी का जवाब आएगा 2। टी वेव का जवाब होता है कि अब आपका वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहा है, आपका वेंट्रिकल अब आराम कर रहा है, तो इसके रहेगा ऑप्शन नंबर 4। एंड टी वी गैप गोस फॉर हार्ट मसल इलेक्ट्रिकली साइड, जिसको ये स्टार्टिंग के जब वो डी का जवाब इजीली दे जाएगा। Bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced। बिल्कुल हाँ, बी marrow पे सारे के सारे आपके WBC बनते हैं। lymphoid organs है आपका बेसिकली जहाँ पे blood cell बनता है, this is true, सही बात है। But both the bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes। So एक मिनट
Bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes, all the blood cells basically blood cells में क्या क्या आता है, RBC आता है, WBC आता है, WBC में तो lymphocyte आ जाते हैं, B lymphocyte, T lymphocyte आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है प्लेटलेट, ये सब कुछ कहाँ बन रहे हैं, बोन मैरो में बन रहे हैं। जी हाँ, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, सही बात है। Both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocyte. जो हमारे T lymphocytes होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, पर उसका जो मैचुरेशन होता है वो थाइमस में होता है। थाइमस इज अ पी लाइक ग्लैंड नियर योर चेस्ट जो कि हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन की मदद से हमारे T lymphocyte मैच्योर होते हैं। तो जी हाँ, ये भी सही बात है। बोथ और स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 197। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का एक चार्ट दिया है, हमको इसमें से ढूंढना है करके कि ए वाला क्या है। यहाँ पे सबसे पहले ए क्या होगा, जीएनआरएच दो हार्मोन रिलीज करता है, एक का नाम है एलएच और दूसरे का नाम है एफएसएच। एफएसएच कहाँ है, यहाँ गोइंग अहेड फॉर बी। ये जो हमारा एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये कहाँ पर काम कर रहा है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स पर काम करता है ताकि आपके लीडिंग सेल्स क्या बनाए, एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन। तो आ गए आप लोग यहाँ पर लीडिंग सेल्स, एफएसएच लीडिंग सेल्स। गोइंग फॉर द सी, यहाँ से अगर एफएसएच से अगर आपका आना है तो ये एफएसएच कहाँ पर काम कर रहा है, सर्टोली सेल्स के ऊपर में काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर काम करेगा तो नहीं, ये सर्टोली पे भी काम करेगा। सर्टोली का दूसरा नाम होता है नर्व सेल और उसके बाद में होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब के फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब के जो मैच्योर स्पर्म सर्टोली सेल्स बनाता है उसको अपने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज कर देना, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 198 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, as per ABO blood grouping system the blood group of father is B, that of the mother is A and the child is O। तो ये कैसा हुआ होगा, थोड़ा अगर हम लोग अगर लॉजिक लगाए, फादर के पास में एक तो IA हो सकता है या तो फिर फादर के पास में एक डोमिनेंट होगा और एक कुछ तो भी ऐसा रिसेसिव होगा। ये हो गई हमारी, सॉरी ये मैंने मदर का बता दिया, दिस गोस फॉर मदर। आई थॉट फादर इज हैविंग ए ब्लड ग्रुप। अगर मैं बात करूं वंस अगेन फादर की, फादर के पास में पी है, आई बी या तो फिर आई डोमिनेंट बी और आई स्मॉल। तो अगर बेबी यहाँ पर हो रहा होगा तो ये बच्चा ऐसा भी बन सकता था, इसीलिए अब हमारे बच्चे के पास में है ओ। तो हमारे पास में ऑप्शन जा रहा है आईबी, आईए एंड रिसेसिव ए। तो इसका आंसर आएगा ए। 199 का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, आरएनए पॉलीमरेज 3। यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए के एंजाइम्स रहते हैं। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि बनाता है एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि बनाता है आरआरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि बनाता है टीआरएनए। तो हमको अगर टीआरएनए के साथ में एसएनआरएनए दिख रहा है कोई गलत बात नहीं है, हम लोग ए के साथ में लगाएंगे 4 को। वी आर अगेन क्लोज टू आवर आंसर। बी, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं हमारे पास में 2 यूनिट होते हैं। टर्मिनेशन करने के लिए प्रोकैरियोट्स को लगता है कि हाँ हमको कोई एक फैक्टर दे दो, ये वाला हमारा रहता है प्रमोटर फैक्टर, ये वाला हमारे पास में रहता है टर्मिनेटर फैक्टर। अगर हमको टर्मिनेट करवाना है तो प्रोकैरियोट्स को लगता है रो फैक्टर। बी का आंसर आएगा 3। यस वी आर गोइंग करेक्ट। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन मतलब कि ये आपका एमआरएनए है, एमआरएनए का वो हिस्सा जो कि कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, एमआरएनए का वो हिस्सा जो कोई भी अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन नहीं ला रहा है, हम उसको बोलते हैं एक्सॉन। और जो इंफॉर्मेशन ला रहा है हम लोग उसको बोलते हैं इंट्रॉन। तो हमको एक फालतू की चीज जो है उसको काट डालनी है, उसको काटने के लिए हमको लगता है एसएनआरएनए और एसएनआरएनपी। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी के लिए जाएगा 1। यस वी आर गोइंग करेक्ट। एंड टाटा बॉक्स इज ऑलवेज प्रमोटर। ये जो प्रमोटर है इसमें जो कोडिंग रहती है वो थाइमिन एडेनिन की रहती है, इसीलिए टाटा बॉक्स इज ऑलवेज कॉल्ड फॉर प्रमोटर। तो आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। 200 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। And with this, we complete our zoology question paper. Thank you.